السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، ہمارا نیا ناول بیک وقت افریقہ اور اندلس کے حکمران یعقوب المنصور سے متعلق ہے۔ فاران کی چوٹیوں سے شروع ہونے والی ازری روشنی حجاز مقدس کو جگمگاتی ہوئی عہد صدیق اکبر میں اقصائے عالم میں پھیلنے لگی، تو پھر عمر فاروق کے دور عدل گستر میں جہاں اس نور مقدس نے شام و ایران اور مصر و فلسطین سے باطل کی ظلمتوں کو کافور کیا، وہاں شمالی افریقہ بھی اس نور کی برکات سے مستفید ہوا۔ شمالی افریقہ میں لیبیا، الجزائر، تیونس اور مراکش کے علاوہ کئی دیگر مسلمان سلطنتیں ہیں۔ قدیم زمانے میں یہاں ان سرزمینوں میں بربر نام کی ایک قوم آباد تھی جو مملکتی حدود سے بے نیاز اور آزادانہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ آخرکار قبل مسیح میں فینکیوں نے تیونس کے علاقے پر باقاعدہ حکومت قائم کی۔ ان کا صدر مقام کرتاجنہ تھا، یہاں انہوں نے لگ بھگ 600 سال حکومت کی۔ پھر ان کی بدقسمتی کے رومن ان پر حملہ ہوئے اور رومنوں کے ساتھ ان کی 100 سالہ جنگ جاری رہی۔ بالآخر اہل روما نے اس سرزمین کو فونکیوں سے چھین لیا۔ اس کے بعد ونڈال نام کی وحشی قوم رومنوں پر حملہ ہوئی اور یہ علاقہ انہوں نے رومنوں سے چھین لیا۔ رومنوں کو اس علاقے کا چھن جانے کا بڑا دکھ تھا، لہٰذا 36ویں صدی میں اہل روما نے دوبارہ حملہ ہو کر اس خطے کو فتح کر لیا اور حسب سابق وہاں اپنی شان و شوکت کے ڈنک کے بجائے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس علاقے پر رومنوں ہی کی حکومت تھی۔ اسلامی عساکر نے پہلے برقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں طرابلس کو فتح کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس پر بھرپور توجہ دی گئی اور شمالی افریقہ کے اکثر مقامات پر پرچم اسلام بلند کر دیا گیا۔ آئندہ چند سالوں کے اندر عقبہ بن نافع نے قریب سارے شمالی افریقہ کو مسخر کیا، لیکن بدقسمتی سے وہ اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ دشمن کے نرغے میں آ کر شہید ہو گیا اور شمالی افریقہ کے حالات پھر دیگرگو ہو گئے۔ عبد الملک بن مروان نے ظہیر بن قیس کی سرگردگی میں ایک لشکر روانہ کیا، جس نے اگرچہ بربروں پر فتح پالی، لیکن ظہیر اور اس کے ساتھی بھی اہل روما سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور شمالی افریقہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ہجری 74 میں مسلمان پھر اس طرح متوجہ ہوئے اور 4 سال کے قلیل عرصہ میں ایک بار پھر شمالی افریقہ پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا۔ اس کام کو موسیٰ بن نصیر نے بڑے احسن طریقے سے انجام دیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے بعد طارق بن زیاد کے ساتھ مل کر اسپین پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح موسیٰ بن نصیر بیک وقت افریقہ اور اندلس کا حاکم بنا۔ 5ویں صدی ہجری میں مرابطین کا ظہور ہوا۔ اس وقت اندلس کی حالت قابل رحم تھی اور شمال کی طرف سے فرانسیسی اور شمالی اندلس کے عیسائی سلطنت مسلمانوں پر حملہ ہو رہی تھی اور بڑی تیزی کے ساتھ ان کے علاقے ان سے چھین رہی تھی۔ مرابطین نے مراکش، تیونس، الجزائر اور طرابلس پر اپنی حکومت کو مستحکم کیا۔ پھر مرابطیوں ہی کے رجل عظیم یوسف بن تاشفیر نے افریقہ سے اٹھ کر اندلس کا رخ کیا اور شمال کے عیسائی حکمرانوں کو ایک بار پھر مار بھگایا اور اندلس کو محفوظ کر دیا۔ مرابطین کے زوال کے بعد اندلس کی حالت ایک بار پھر ابتر ہو کر رہ گئی۔ شمالی اندلس کا حکمران الفانسو اور پرتگال کا حکمران سینکو مسلمانوں کے علاقوں پر چڑھ دوڑے اور وسیع علاقے انہوں نے مسلمانوں سے چھین لیے۔ اس دور میں افریقہ میں مواحدین نے اپنی سلطنت افریقہ میں مستحکم کی۔ مواحدین کا بانی محمد بن تومر تھا۔ اس کے وفات کے بعد عبد المومن بن علی اس کا جانشین ہوا اور اس نے امیر المومنین کا لقب اختیار کر کے اپنا تعلق خلافت عباسیہ سے یکسر منقطع کر لیا۔ عبد المومن ایک بہادر اور پرعزم فرمانروا تھا۔ اس نے فارمن عیسائیوں کو پے در پے شکستیں دے کر افریقہ کے چپے چپے پر قبضہ کر لیا اور رومنوں کو نکال باہر کیا۔ عبد المومن کے بعد اس کا پوتا ہجری 580 میں اس مسند خلافت پر متمکن ہوا اور اس کا نام یعقوب المنصور تھا، اور یہ ناول اسی یعقوب المنصوری کے متعلق ہے۔ مورخین نے اس یعقوب المنصور کو ایک گوہر تابدار قرار دیا ہے۔ یعقوب المنصور کا شمار اسلام کے ان 10 بڑے سورماؤں میں کیا جاتا ہے جن کے حالات قلم بند کرنے کا ارادہ مولانا شبلی نے کیا تھا، لیکن افسوس کہ وہ الفاروق اور المامون کے علاوہ کسی اور پر قلم نہ اٹھا سکے۔ اس ناول کے 4 کردار بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلا برقہ کلیسا، جس کا نام توزمان تھا لیکن یہ برقہ کلیسا کے نام سے مشہور ہوئی۔ پرتگال کی عیسائی حکمران سینکو کی بھتیجی تھی اور اس کی تربیت ہی اس نے اس طرح کی تھی کہ اس نے سینکو کے بیٹے کا کردار ادا کیا اور جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف جگہ جگہ اس نے محاذ کی۔ برقہ کلیسا جہاں تیغ زنی میں ایک کمال رکھتی تھی، وہاں وہ اپنے حسن، اپنی خوبصورتی میں بھی لاجواب تھی۔ جہاں پرتگال کے اندر طرح طرح کے طوفان کھڑے کیے، وہاں اس کے کوار بننے کی خوشبو اور تیغ زنی کی مہارت نے جنگوں میں بھی برق سی گرانے کا کام سر انجام دیا۔ نام تو اس کا مازن تھا۔ سینکو نے چونکہ اسے کلیسا کے حوالے کر دیا تھا، کلیسا والوں نے اسے حربی تربیت دی اور مسلمانوں کے سامنے لا کھڑا کیا، لہٰذا یہ برقہ کلیسا کہلائی۔ اس ناول کے باقی 3 اہم کرداروں میں سے سر فہرست احمد بن سعید کا نام آتا ہے، دوسرے نمبر پر کراکوش اور تیسرے نمبر پر شوبان۔ یہ تینوں سلطان صلاح الدین کے نامور جرنیل اور سالار تھے جنہیں اس نے یعقوب المنصور کی طرف روانہ کیا تھا۔ یعقوب المنصور کے ساتھ مل کر ان تینوں نے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ برقہ کلیسا، جسے پرتگال کے لشکری اور حکمران ناقابل تسخیر خیال کرتے تھے، اسے اسی احمد بن سعید نے اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ برقہ کلیسا اور احمد بن سعید کی ملاقاتیں کیا رنگ لائیں، یہ سب کچھ آپ کو اس ناول برقہ کلیسا میں تفصیل کے ساتھ ملے گا۔
मराकश के कसरे अलमजाज में अफ्रीका और उंदुलुस का हुक्मरान अमीर याकूब अल मंसूर इंतहाई संजीदा और फिक्रमंदी की हालत में बैठा हुआ था। याकूब अल मंसूर का रंग खिलता हुआ, गंदमी चेहरा कदरे लबूतरा लेकिन खुशनुमा था। आंखें रोशन सरमगी थीं, मुंह का दहाना फराख, दाढ़ी गोल और जिस्मानी अज़ा खूब कवी और मजबूत थे। इस मौका पर याकूब अल मंसूर के सर पर एक मामूली कपड़े का अमामा बांध रखा था। कहते हैं कि याकूब अल मंसूर एक अजीमुशान सल्तनत का फरमा रवा था, लेकिन वो शाहाना करोफर और नमूद नुमाइश से बिल्कुल इज्तनाब करता था। कहने वालों का ये भी कहना है कि इसका लिबास और खाना बिल्कुल मामूली होता था। इसने सारी जिंदगी सोना चांदी रेशम और हीरे जवाहरात इस्तेमाल न किए और न अपने लिए ताज शाही बनवाया। इसके सर पर सादा अमामा होता था। इसके इंकिसार की ये कैफियत थी कि अक्सर व बेशतर अपने सिपाहियों और तलबा के साथ जमीन पर बैठकर खाना खा लेता था और कुरान और हदीस के उलमा के सामने बिछ जाता था। मसनद हुकूमत पर बैठने के बाद वो 5 वक्त की नमाज में खुद अमामत करता था। ये सिलसिला कई माह तक जारी रहा। एक दिन किसी काम में मशगूलियत की वजह से वो नमाज असर के लिए वक्त पर मस्जिद न पहुँच सका। यहाँ तक कि वक्त कम रह गया और लोग इसका इंतजार करते रहे। आखिर इसने आकर नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद लोगों को सख्त इमामत की और कहने लगा, मैं देखता हूँ कि आप लोग सिर्फ मेरी खातिर नमाज पढ़ते हैं, वरना आपको मेरे बगैर नमाज पढ़ने में क्या चीज माने थी। आप में से कोई भी साहिब इमामत करा सकते थे। क्या आपको याद नहीं कि एक मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ न ला सके तो सहाबा कराम ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को इमाम बनाकर नमाज अदा कर ली थी, क्योंकि नमाज का वक्त जा रहा था। क्या ये रहनुमाए दीन और आसमानी हदायत के सितारे आपके लिए नमूना नहीं है? कहते हैं कि इस वाक़े के बाद खलीफा ने इमामत तर्क कर दी और किसी दूसरे इमाम की इमामत में नमाज पढ़ने लगा था। अमीर याकूब अल मंसूर इसी तरह संजीदा हालत में कसर की नशिस्त पर बैठा था कि इसका हाजिब अब्दुल्ला बिन याकूब अंदर दाखिल हुआ। याद रहे कि अमीर याकूब अल मंसूर का हाजिब अब्दुल्ला बिन याकूब इसका बेटा था। इस मौका पर अमीर याकूब ने अल मंसूर के सामने 2 रोया अराकीन सल्तनत बैठे हुए थे। दायजानी वजीर अव्वल अबू बकर बिन अब्दुल्ला, इसके बाद वजीर दोम अब्दुल्ला बिन मोहम्मद, फिर वजीर सोम अब्दुर्रहमान बिन मूसा बैठे हुए थे। इसके बाद कातिब मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान थे। इसके बाद मुख्तलिफ अराकीन सल्तनत अपने अपनी नशिस्त पर बैठे हुए थे। बाईं जानी पहली नशिस्त जो सल्तनत के काजी की थी वो खाली पड़ी थी। दूसरी नशिस्त पर नायब काजी कुज़ा अबुल कासिम बैठे हुए थे और इनके बाद लश्करियों के छोटे बड़े सालार अपने अपनी नशिस्त संभाले हुए थे। कसर के कमरे में दाखिल होने के बाद हाजिब बिन अब्दुल्ला बिन याकूब ने अमीर याकूब अल मंसूर यानी अपने बाप को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, अमीर मोहतरम, इस वक्त 3 अशखास आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहते हैं। अव्वल अपने काजी कुज़ा अबू जाफर अहमद बिन मज़ा, वो 4 नुवारदों को पेश करना चाहते हैं जिनके मुतालिक इनका कहना है कि गुज़श्ता कई दिनों से इन चारों ने काजी कुज़ा के यहाँ काम कर रखा है और वो मशरिक के अजीम सुल्तान और हमारे अजीज व मोहतरम भाई सुल्तान सलाहुद्दीन की तरफ से तशरीफ लाए हैं। अमीर मोहतरम, दूसरा शख्स जो आपकी खिदमत में हाजिर होना चाहता है वो करतबा के वाली और आपके भाई अबू यहया की तरफ से आया है और आपकी खिदमत में कोई अहम खबर कहना चाहता है। अमीर मोहतरम, तीसरा शख्स जो आपसे मुलाकात का मुंतजिर है वो पुर्तगाल के बादशाह सेंको का सफीर है। इसने अपनी जात के मुतालिक ये भी इंकिशाफ किया है कि पुर्तगाल में जिस कदर टेम्पलर है, इनका एक सरकर्दगा मोतबर और बेतेग और बेमिसल तेगजन है। वो आपको पुर्तगाल के बादशाह सेंको का कोई पैगाम देना चाहता है। अमीर मोहतरम, मैं एक गुजारिश करना भूल गया, वो ये कि हमारे काजिल कुज़ा जिन 4 जवानों को आपकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं, इनके साथ एक 5वां जवान भी है। इसका नाम अबुल हर्स अब्दुर्रहमान है। इसका ताल्लुक शिराज के हुक्मरान खानदानों से है। ये सुल्तान सलाहुद्दीन का कासिद है और आपके नाम सुल्तान मोहतरम सलाहुद्दीन का कोई अहम पैगाम लेकर आया है। काजिल कुज़ा का ये भी कहना है कि अबुल हर्स अब्दुर्रहमान के पास सुल्तान सलाहुद्दीन की तरफ से आपके नाम कोई खत भी है। अब जिसके मुतल्लिक आप हुक्म दें इसे पेश करूं। हाजिब जब खामोश हुआ तो अमीर याकूब अल मंसूर ने कुछ सोचा, फिर हाजिब को मुखातिब करके कहने लगा, सबसे पहले काजुल कुज़ा अबू जाफर को अंदर भेजो। इन्हें कहो पहले अकेले आकर मेरे साथ गुफ्तगू करें। जो 4 जवान मेरे सामने पेश करना चाहते हैं इन्हें भी अपने साथ न लाएं और हमारे मोहतरम भाई सलाहुद्दीन की तरफ से जो कासद आया है वो भी इन 4 जवानों के साथ अंदर आएगा। इसे भी बाहर रोको। हाजिब अब्दुल्ला बाहर निकल गया। थोड़ी देर में अब्दुल्ला के साथ मराकश का काजिल कुज़ा अबू जाफर अंदर आए और अमीरुल मोमिनीन याकूब अल मंसूर का चचा अब्दुर्रहमान बिन यूसुफ दाखिल हुए। इनकी आमद पर सब अपनी जगह पर उठ खड़े हुए। याकूब अल मंसूर ने भी अपनी जगह से उठकर इनका इस्तकबाल किया। दोनों आगे बढ़कर अपनी नशिस्तों पर बैठ गए। अमीरुल मोमिनीन याकूब अल मंसूर का जो सबसे करीबी नशिस्त थी, इस पर काजिल कुज़ा अबू जाफर बैठे थे। इस वक्त कसरे अलमजाज में बिल्कुल खामोशी और सुकूत था। इस मौका पर याकूब अल मंसूर ने कुछ सोचा, फिर वो अपने काजिल कुज़ा अबू जाफर को मुखातिब करते हुए इसने कहना शुरू किया, मेरे मोहतरम, हाजिब अब्दुल्ला बता रहा था कि आपने अपने साथ हमारे भाई सलाहुद्दीन का एक कासिद और सुल्तानी की तरफ से आने वाले 4 जवानों को लेकर आए हैं। मैं इनसे मुतल्लिक तफसील जानना पसंद करूंगा। इस मौका पर काजी अबू जाफर के लबों
लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर अबुल मंसूर को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहना शुरू किया, अमीर मोहतरम, जिन 4 जवानों का जिक्र हाजिब अब्दुल्ला ने आपके सामने किया है वो अपने शोबे में बिल्कुल बेमिसाल हैं। मैं गुज़श्ता 4 दिन से इनकी ज़ात का मुताला करता रहा हूँ। मैंने इनके मुतल्लिक पूरी छानबीन करने के बाद आपके सामने पेश करना चाहता था। सुल्तान सलाहुद्दीन का कासिद आया है, इसका नाम अबुल हर्स है। इससे भी इन चारों के मुतल्लिक तफसील मालूम कर चुका हूँ। अबुल हर्स के पास सुल्तान सलाहुद्दीन की तरफ से आपके नाम में खत भी है। मैंने इस खत की नोयत जानने की कोशिश नहीं की, वो खुद खत आपकी खिदमत में पेश करेगा। बहरहाल जिन 4 से मुतल्लिक आपने पूछा, इनमें से पहला ढलती उम्र का एक शख्स है, इसका नाम इमादुद्दीन है और ये सुल्तान सलाहुद्दीन के जो मिस्र में लश्कर मुकीम है इन लश्करों का काजी है। जो कासिद सुल्तान सलाहुद्दीन की तरफ से आया है, इनका कहना है कि काजी इमादुद्दीन जमीन पर गिरने और फलक पर सितारे बखेर देने वाला एक जय्यद आलिम है, सच्चे जज्बों के जोहर की तरह एक इंसाफ पसंद काजी और जवाहिर के पारिख जैसा बेहतरीन मुंसिफ है। दूसरा एक नौजवान है, नाम इसका शोबान है। ये नौजवान एक कामिलुल फन, शायर, बुलंद पाया, अदीब और नहायत नफीसुल मिजाज आदमी है। इससे मुतल्लिक अबुल हर्स ने बताया है कि ये एक बेहतरीन जासूस और उम्दा किस्म का मुखबर है, ऐसा मुखबर जो टूटे ख्वाबों, बिखरी ताबीरों के अंदर भी मीठे बोल के जादू की तरह उठ खड़ा हो, जो सोती हलचल के अंदर भी कीमिया लफ्ज़ों के हेर फेर की तरह अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो जाए। एक ऐसा जासूस है जो हरूफ तमन्ना के मुसाफिर की तरह हिजर की पलकों और जलते इस्तारों में भी उतर जाने का फ़न जानता है। तीसरे जवान का नाम खराकोश है, इंतहाई अजीबोगरीब नौजवान है। कासिद का कहना है कि ये एक उम्दा और बेमिसल तेगज़न है। दुश्मन से जब टकराव होता है तो तेज़रो बर के गाम हरूफ अफसू की तरह दुश्मन की सफ़ों में घुस जाने का फ़न जानता है। किसी बेरहना तरगीब देने वाले रक्स रिंदाना की तरह हमलावर होता है और होश हवास को मुंजमद कर देता है। कहते हैं जब यह टकराव पर उतरता है तो फिशारे आतिश के वारफ्ता सैल मैशर की सूरत इख्तियार कर जाता है। चौथा इन सब में बढ़कर है, इसका नाम अहमद बिन सईद है। ज़्यादातर इसे अहमद अल हाजिब के नाम से पुकारा जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन के मोहतरम सफीर का कहना है कि ये शर्ख हर व ज़र्ब के हर शोबे में बेमिसाल है। कहता है कि जंगों के अंदर ये फिरकतों के स्याह अंधेरे आरज़ुओं के सुनहरे मौसमों की तरह छा जाता है। जंग के दौरान जब ये वहशतों के रक्स और गूंजते आबशारों के नगमों की तरह तकबीरें बुलंद करते हुए सुलगते धारों के पानियों की तरह नज़ूल करता है तो सफ पा सफ दुश्मनों को मौत की वादियों में धकेलता चला जाता है। कहते हैं जब ये तलवार हरकत में लाता है तो दस्ते कज़ा का कहर बनकर दरे अफलाक से उतरता है, एक रक्स से फना बन जाता है। जब ये अपने तीरों से काम लेता है तो मौसमों की आंख मुचोली में बुक्कल मारे बैठी आहें फैलाती मौत की तरह उठता है और अपने सामने आने वाली हर शय को छलनी करता चला जाता है। अमीर मोहतरम कासिद का ये भी कहना है कि जब ये अपने नेज़े को हरकत में लाता है तो कहत के फैलते लम्हों और बेचैन कर देने वाले यासो अफलास की तरह दुश्मन पर छा जाने का फ़न और हुनर जानता है। अमीर मोहतरम बताने वाले ये भी बताया है कि चारों का ताल्लुक गज़ तुर्कों से है, लेकिन मैंने जो अंदाज़ा लगाया इसके मुताबिक काजी इमादुद्दीन, शोबान और कराकोश का ताल्लुक तो गज़ तुर्कों से हो सकता है। जहाँ तक अहमद बिन सईद अल हाजिब का ताल्लुक है तो वो मुझे बुनियादी तौर पर एक अरब लगता है। मैंने अंदाज़ा इसके लिबास से भी लगाया है। अब इनके मुतल्लिक आप जो भी हुक्म दें इस पर अमल किया जाएगा। इस मौका पर याकूब अल मंसूर ने कोई तवक्कुफ नहीं किया। काज़ी कुज़ा के बजाय अपने बेटे हाजिब अब्दुल्ला की तरफ देखा और इसे मुखातिब किया। जिन चारों जवानों का काज़ी कुज़ा ने जिक्र किया है इन्हें अंदर लाओ। इनके साथ हमारे मोहतरम और भाई की तरफ से जो सफीर आया है इन चारों के साथ इसे भी अंदर लाओ। पहले मैं इनसे बात करूंगा, इसके बाद करतबा में मेरे भाई याह्या की तरफ से जो सफीर है इसे पेश करना। आखिर में सैंकों के सफीर से गुफ्तगू करना पसंद करूंगा। इसके साथ ही हाजिब बाहर निकल गया था। हाजिब के जाने के बाद याकूब अल मंसूर ने एक बार फिर काजी अबू जाफर को मुखातिब करके कहना शुरू किया, अबू जाफर मेरे मोहतरम, चारों नवारदों की तारीफ आपने इस तरह की है कि इनसे मुलाकात करने, उनसे मिलने की ख्वाहिश अपनी दीवानगी की आखिरी हदूद तक पहुँच गई है। आपके अल्फाज ने इनसे मुलाकात कराने के लिए मेरे दिल में, मेरे ज़मीर, मेरे ज़हन में एक हलचल बर्पा कर दी है। पर एक बात बताएं, सुल्तान सलाहुद्दीन की तरफ से अबुल हर्स नाम का जो कासिद आया है वो सुल्तान को कोई पैगाम लेकर आया होगा। इससे मुलाकात पर पता चल जाएगा कि मोहतरम सलाहुद्दीन ने मेरे नाम क्या पैगाम भिजवाया है। पर यह तो कहो, जिन 4 जवानों की या 3 जवानों और एक काजी इमादुद्दीन की आपने तारीफ की है, उन्होंने किस सिलसिले में हमारी सरजमीनों का रुख किया है? याकूब अल मंसूर जब खामोश हुआ तो तब काजी अबू जाफर ने कहना शुरू किया, अमीर मोहतरम काजी इमादुद्दीन, शोबान, कराकोश और अहमद बिन सईद अल हाजिब, चारों ने हमारी सरजमीनों का क्यों रुख किया है ये काजी इमादुद्दीन खुद ही आपसे कहेंगे। मैं शायद आपसे ही कहना भूल गया हूँ कि काजी इमादुद्दीन बेहतरीन किस्म का खतीब और एक नायाब व बेमिसल मुकर्रर है। मैं बता चुका हूँ कि मिस्र में सलाहुद्दीन के लश्करों के काजी थे। जो कासिद सलाहुद्दीन की तरफ से आया है इसका कहना है कि काजी इमादुद्दीन जब तकरीर करते हैं तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कहते कहते काजी अबू जाफर को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि हाजिब 5 अशखास के साथ अंदर दाखिल हुआ था। अमीर याकूब अल मंसूर ने बड़ी फराखदिली का मुजाहरा करते हुए अपनी जगह से उठकर इन 5 का इस्तकबाल किया, पुरजोश अंदाज में इनसे मुसाफे किया, फिर नशिस्तों पर बैठने के लिए कहा। इसके बाद
अमीर याकूब अल मंसूर ने आने वाले 5 का तारुफ कराते हुए काजी अबू जाफर ने कहा, अमीर मोहतरम पहले निश्चित पर जो ढलती उम्र का शख्स बैठा है ये इमादुद्दीन है। इसके साथ बेमिसल तेगजन अहमद बिन सईद अल हाजिब है। तीसरे नंबर पर कराकोश और आखिर में शोबान बैठा हुआ है। शोबान के साथ जो आगे जवान है वो सुल्तान सलाहुद्दीन का कासिद अबुल हर्स है। अमीर ने सबका जायजा लेना शुरू किया। पहले इसकी निगाहें अहमद बिन सईद अल हाजिब पर जमी थी। अमीर याकूब अल मंसूर ने देखा अहमद बिन सईद अल हाजिब की आंखों में ऐसा तजस्सुस था जैसे कोई शेर जंगल में खटके के बाइस कच्ची नींद से जाग उठा हो। इसकी आंखों में उस शाहीन की सी सुर्खी थी जो भूख के मारे किसी शिकार पर झपट पड़ा हो। अमीर ने यह भी देखा कि अहमद बिन सईद अल हाजिब के चेहरे पर वफा के दश्त में वक्त की जंजीरें काट देने वाले सुलगते ख्वाबों जैसे जज्बे थे। ऐसा महसूस होता था जैसे मिल्लत के बिखरे अनासिर को वो अपने जज्बात की शिद्दत से यकजा करने का हुनर और सफाई जानता हो। अहमद बिन सईद से हटकर अमीर की निगाहें कराकोश पर जमी। इसने देखा इसका चेहरा ऐसा था जैसे बेरहम दरअंदाजों के अंदर कुछ जुर्रत सरकश बनकर खड़ा हो, या लफ्जों की मलाल यादों के जंगल में जबत की तमन्ना का उम्दा मिसाल पेश करने वाला कोई नकीब अपनी मौजूदगी का पता दे रहा हो। तीसरे जर्दे पर अमीर ने शोबान की तरफ देखा जिसके मुतल्लिक इसे बताया गया था कि वो जासूसी और खबरें इकट्ठी करने में अपना जवाब नहीं रखता। अमीर याकूब को महसूस हुआ कि शोबान ऐसा जवान है जैसे बेदर के गुम्बद में छुपे राज। इसका चेहरा बता रहा था कि जैसे वो गम फरदा के दुखों को निढाल करके इन्हें नगमों का उबाल देने का फन जानता हो। आखिर में अमीर की निगाहें काजी इमादुद्दीन पर जमकर रह गई। काजी इमादुद्दीन अमीर याकूब को ऐसे लगा जैसे इसने खुददारी की रिदा ओढ़ रखी हो, जैसे वो हादसा बदोश मौजूदा तखय्युलात का ज़हूर करने वाला हो। अमीर याकूब के चेहरों से नगमों की गनायत जैसा इंसाफ और खतीबाना रंग जैसी मुनसफी दिखाई दी थी। कुछ देर तक इन चारों का जायजा लेने के बाद अमीर याकूब अल मंसूर ने काजी इमादुद्दीन की तरफ देखा, फिर इसे मुखातिब किया, मोहतरम इमादुद्दीन, मैं आप 5 को इस सरजमीन पर खुशामदीद कहता हूँ। कबल इसके कि मैं अपने मोहतरम और अपने भाई सलाहुद्दीन के कासिद से गुफ्तगू करूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप चारों की इस तरफ आमद का मकसद क्या है। अमीर याकूब अल मंसूर काजी इमादुद्दीन को जब मुखातिब किया तो इमादुद्दीन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और कुछ कहना ही चाहता था कि बड़ी बेचैनी से अमीर याकूब ने इस जगह पर पहलू बदला और हाथ के इशारे से इमादुद्दीन को बैठने के लिए कहा। फिर इसकी आवाज़ भी सुनाई दी, आपको मुझसे मुखातिब होने के लिए उठने की जहमत करने की जरूरत नहीं है, आप बैठे तशरीफ रखें, जो कुछ कहना चाहते हैं बैठे बैठे कहें। काजी इमादुद्दीन बैठ गया। निगाहें इसकी अमीर याकूब अल मंसूर की तरफ जम गई। फिर कसर के इस कमरे में काजी इमादुद्दीन की आवाज़ गूंज गई, अमीर मोहतरम, पुर्तगाल के हाकिम सैंकू की सरजमीन में चंद किले ऐसे हैं जहां यूरोप के सारे टेम्पलर जमा होते हैं। वहां इन्हें तरबियत दी जाती है। तरबियत की तकमील के बाद इन्हें फ़लस्तीन में हमारे सलाहुद्दीन के खिलाफ लड़ने के लिए रवाना किया जाता है। हमें सुल्तान सलाहुद्दीन ने इस गर्ज के तहत आपकी तरफ रवाना किया कि आपके साथ मिलकर हम इन किलों का खात्मा करें जिनमें टेम्पलर परवरिश पाते हैं और तरबियत हासिल करने के बाद फ़लस्तीन के मुसलमानों का कत्लेआम करने के लिए मशरिक़ का रुख करते हैं। अमीर मोहतरम, आप जानते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन ने यूरोप के बादशाहों को जिनके लश्करों की तादाद एक सराब की सूरत में रोके हुए है, जगह जगह इनकी सुल्तान के साथ जंगें हुई, लेकिन इस्लाम के इस रजल अजीम ने हर मैदान, हर सहरा, हर कोहस्तानी सिलसिले में दुश्मन को मार भगाया और अभी तक दुश्मन को इनकी ख्वाहिशों के खिलाफ सुल्तान सलाहुद्दीन ने इन्हें बैतुल मक़दस का रुख नहीं करने दिया। अमीर मोहतरम, अगर स्पेन में इसी तरह टेम्पलर की तरबियत जारी रही और वो गिरोह दर गिरोह, लश्कर दर लश्कर यहाँ फ़लस्तीन पहुँचते रहे तो हमारे सुल्तान के लिए मसाइल उठ खड़े होंगे। हम चारों के जिम्मे ये काम लगाया गया कि इन टेम्पलर का खात्मा किया जाए, इनकी अमाजगाहों को, इनकी तरबियत गाहों को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, जहाँ से उठकर वो फ़लस्तीन का रुख करते हैं। अमीर मोहतरम, मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँगा कि अगर टेम्पलर की इन तरबियत गाहों के सिलसिले में पुर्तगाल का हुक्मरान सैंको या शुमाली हिंद का ईसाई हुक्मरान फांसो आपके खिलाफ उठ खड़े होते हैं तो हम आपके लश्कर में एक मामूली मुजाहिद की हैसियत से लड़ना सादत ख्याल करेंगे। टेम्पलर मुसलमानों के खिलाफ जंग करना या इनका कत्लेआम करना अपना मजहबी फरीज़ा ख्याल करते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, टेम्पलर इब्तिदा में एक मजहबी तंजीम थी जिसकी बुनियाद सन 1811 में रखी गई थी। इसका मरकज़ यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस था और इनका मकसद ईसाई ज़ायरीन की हिफाजत करना था। बाद में ये फ़ौजी तंजीम की सूरत इख्तियार कर गई। सुल्तान सलाहुद्दीन ने 1186 में यरूशलेम को मुसख्खर किया तो इन लोगों ने कब्रस को अपना मरकज़ बना लिया। इनमें से कुछ लोगों ने उंदुस का रुख किया, कुछ लंदन जाकर आबाद हो गए। लंदन का ये इलाका आज भी दी टेम्पलर के नाम से मशहूर है और वहाँ एक गिरजा भी इनसे मंसूब है। 13वीं सदी के आखिर में इस तंजीम का खात्मा हो गया। काजी इमादुद्दीन मजीद कुछ कहता, बीच में अमीर याकूब अल मंसूर बोल पड़ा और काजी इमादुद्दीन को मुखातिब करके कहना शुरू किया, मेरे मोहतरम, आपको मजीद कहने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ आप कहना चाहते हैं और जिस मकसद के तहत आपने हमारी सरजमीनों का रुख किया है मैं समझ चुका हूँ। जो काम आप करना चाहते हैं वो काम करने के लिए आपको पूरे मौके फराहम किए जाएंगे। मेरा पूरा ताउन आपके साथ होगा, आप इस सिलसिले में बिल्कुल बेफिक्र रहें। इसके बाद अमीर ने सुल्तान सलाहुद्दीन के कासिद अबुल हरस को मुखातिब करके कहना शुरू किया, अबुल हरस, तुम हमारे भाई सलाहुद्दीन की तरफ से जो पैगाम लेकर आए हो वो कहो।
अबुल हर्स अपनी जगह से उठा। अपने लिबास के अंदर से इसने खत निकाला और आगे बढ़कर इसने बड़ी ताजीम के साथ वो खत अमीर याकूब अल मंसूर को थमा दिया। याकूब अल मंसूर ने खत खोलकर पढ़ा। लिखा था, मुसलमानों के अमीर तुम पर मेरा खुदा हज़ार सलामतियों का नसूल करे। इस वक्त सारी ईसाई दुनिया ने मुत्तहिद होकर अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन पर हल्ला बोल दिया है। अगर आप इस वक्त अपने कुछ जंगी जहाज मुसलमानों की इमदाद के लिए भेजें और साहिल फ़लस्तीन की हिफाजत के काम में मेरा हाथ बिठाएं तो सलीबी जुनूनियों को बड़ी आसानी के साथ समंदर के उस पार धकेलता चला जाऊंगा। ये आपकी तरफ से गोया इस्लाम की मदद होगी। सुन मुसलमानों के अमीर, यूरोप के ये हमलावर फ़लस्तीन के हरूफ लालो निगार को दर दर की कसक सरमदी लताफ़तों को लामहदूद करम में तब्दील करना चाहते हैं। मैं इस वक्त इनके सामने अकेला हूँ। मुसलमान हुक्मरान इस वक्त उफक तो उफक बिखरे हुए शराबों की तरह खामोश और चुप हैं, जबकि यूरोप के सारे हुक्मरान फ़लस्तीन पर उमड़े हुए मुसलमानों को सफ ब सफ मौत की वादियों की तरफ धकेलना चाहते हैं। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि मैं इन दिनों किस कर में हूँ। आलम इस्लाम की तरफ से मैं इनके मुकाबले में अकेला हूँ। यूरोप के अनगिनत हुक्मरान ऐसे लश्करियों के साथ मेरे सामने है जिनका कोई शुमार नहीं। ये भूरे खूनी परिंदों की गैर मानूस परवाज़ की तरफ फ़लस्तीन की तरफ उमड़ते चले आए हैं और सन्नाटों और वीरानों में चलने वाली वहशी हवाओं की तरह इस सरजमीन के अंदर खून के बहते झरने और मरहम को तरसते जख्म खड़े करना चाहते हैं। लेकिन मैं सलाहुद्दीन अगर अकेला भी हुआ तब भी अपने सरजमीनों में दुख के इफरीत खड़े करने की इजाज़त नहीं दूंगा। मैंने अहद कर रखा है कि जूं जूं ये इब्लीस के सैल मैशर हमारे खिलाफ फशार आतिश खड़ी करते रहेंगे तो इनके खिलाफ मेरे जवा जज्बे और तलबे फरोजा तेज रो और बरगम होती चली जाएगी। अमीर अल मंसूर, जब मैं पीछे मुड़कर आलम इस्लाम पर निगाह दुड़ाता हूँ तो मेरे सामने खामोशी ही खामोशी है, चुप ही चुप है। हर सू ताबीरों के दुख, अजियतों के इस्तियारे और कहते जाए फरोशा बरपा है। कोई भी यूरोप के हमलावरों के खिलाफ हलचल नहीं है। लेकिन मैंने अपने खुदावंद कुद्दूस से अहद कर रखा है कि जब तक मेरी ज़िंदगी की गर्दिश है, जब तक सितारों की चमक, सूरज की गर्मी, चांद की ठंडक है, मैं इन यूरोपीय हमलावरों के शहर के उजालों को बेनाम शामों में तब्दील करता चला जाऊंगा। मैं इनके सामने आस के दामन समेटूंगा नहीं। इसलिए अल्लाह जो बड़ा मेहरबान खालिक और इंतहाई रहमदिल आका है, वो अपने बंदों के लिए उम्मीद के दर बंद नहीं करता। अमीर मंसूर, मैंने अहद कर रखा है कि अगर आलिम इस्लाम से कोई भी हुक्मरान पूरे यूरोप के खिलाफ मेरी मदद को न आया तब भी मैं इनके सामने अकेला हूँ, आशोब सहरा, प्यासा सागर और सोती हलचल बनता रहूंगा। और जब तक मेरे जिस्म के अंदर खून का एक कतरा भी है, उस वक्त तक मैं अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन पर हरगिज़ कब्ज़ा न करने दूंगा। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस सिलसिले में आप ज़रूर मेरे इस खत पर गौर फरमाएंगे। पूरा आलम इस्लाम चूँकि इस वक्त सोया हुआ है, मेरी निगाहें सिर्फ आप पर पड़ी इसलिए कि मैं देखता हूँ कि उंदलुस के खिलाफ आप जाग रहे हैं, आप बेदार हैं। आपसे बेहतरी की तवक्को रखता हूँ। सुल्तान सलाहुद्दीन का खत पढ़कर याकूब अल मंसूर गहरी सोचों में खो गया। थोड़ी देर तक इसकी गर्दन झुकी रही, आंखें नमनाक हो चुकी थी। लगता था कि सुल्तान के खत ने इसे हिलाकर रख दिया है। कुछ देर तक होंठ काटता रहा, सोचता रहा। तब कसरल मिजाज के इस कमरे में बैठे लोगों ने देखा। इस वक्त अमीर मंसूर की आंखों में नन्हे नन्हे आंसू तैर रहे थे। सुल्तान के खत से लगता था कि अमीर को रुलाकर रख दिया है। जल्द ही अमीर याकूब अल मंसूर ने अपने आप पर काबू पाया। इसके बाद अपने हाजी की तरफ देखते हुए बोल उठा, अब्दुल्ला, पहले इस कासिद को मेरे सामने पेश करो जो उंदलुस से आया है। मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या कहने आया है। आखिर में पुर्तगाल के ईसाई हुक्मरान सैकड़ों के कासिद को मेरे सामने पेश करना। हाजिब अब्दुल्ला बाहर निकल गया था। इसके जाने के बाद अमीर याकूब अल मंसूर ने सुल्तान सलाहुद्दीन के कासिद को बैठने के लिए कहा। वो फौरन अपनी नशीस पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ढलती उम्र का एक शख्स हाजिब अब्दुल्ला के साथ आया। हाजरीन को बुलंद आवाज़ में इसने सलाम किया। फिर अमीर याकूब अल मंसूर के सामने आन खड़ा हुआ और इसी को मुखातिब करते हुए इसने कहना शुरू किया, अमीर मोहतरम, मुझे उंदलुस के हाकिम और आपके भाई अबू याह्या ने आपकी तरफ रवाना किया है। उंदलुस इस वक्त आपकी तवज्जो का तालिब है। अमीर मोहतरम, शुमाली उंदलुस और पुर्तगाल के हाकिमों ने आपके वालिद मोहतरम के दौर में मुसलमानों के इलाकों पर हमला किया, लेकिन आपके वालिद ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए अपने इलाकों में भाग जाने पर मजबूर कर दिया। अब एक अरसा से आप जब उंदलुस की तरफ नहीं गए, आप मराकशी में बैठे हुए हैं। वो ये समझते हैं कि आपकी उंदलुस में कोई दिलचस्पी नहीं है। इन्हीं अंदाजों से फायदा उठाते हुए शुमाली उंदलुस के हुक्मरान अल्फांसो और पुर्तगाल के बादशाह सैनिकों ने बाहम सलाह मशवरा किया, फिर एक साथ मुसलमानों के इलाकों पर हमलावर हो गए। अमीर मोहतरम, अल्फांसो हमारे बेहतरीन शहर शलब पर हमलावर हुआ। शलब को फतह करते हुए वहाँ इसने खूब कत्लेआम किया और शलब के गिरदोनवा मीलों तक के इलाकों में तबाही और बर्बादी का खेल खेलते हुए इसने इन सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया। अमीर मोहतरम, जहाँ तक पुर्तगाल के बादशाह सनका का ताल्लुक है, वो भी अपने लश्कर के साथ निकला और दूर दूर तक हमारे इलाकों में तबाही और बर्बादी का खेल खेला और हमारे इलाकों से वादी आरा,
कलसपरा, रियाना और मुफासला शहरों के अलावा मीलों तक इनके गिरदोनिवाह में जो इलाका बनता है इस पर वो काबिज हो चुका है। इन दोनों ईसाई हुक्मरानों ने चूंकि दूर दूर तक मुसलमानों के इलाकों में कत्ल गारतगरी का खेल खेला, लिहाजा मुसलमानों के काफिले जोक तर जोक इन इलाकों से हिजरत करते हुए महफूज इलाकों की तरफ आ गए हैं। जिनके रिश्तेदार हैं वो उनके पास आबाद हो गए हैं और जिनका कोई नहीं वो नंगे आसमान तले बेबसी की हालत में कभी अल्लाह को और कभी आपको मदद के लिए पुकारते हैं। अमीर मोहतरम उंदलुस में आपके भाई अबू याहिया ने एक के बाद दीगरे कई लश्कर दोनों बादशाहों की अलगार रोकने के लिए रवाना किया, लेकिन हर लश्कर को नाकामी हुई, इसलिए कि अल्फांसो और सैनको के मुकाबले में हमारे लश्करों की तादाद न होने के बराबर थी। खुद अबू याहिया भी कई मरतबा इन दोनों बादशाहों के सामने आया, लेकिन इसे हजीमत का मुंह देखना पड़ा। सुल्तान मोहतरम इन दो बादशाहों के अलावा दो अहम कुव्वतें भी मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई खूंखारी का मुजाहरा कर रही हैं। एक टेम्पलर है, इन्होंने पुर्तगाल के हुक्मरान सैनको की सरजमीनों के अंदर चंद किले अपने तसर्रुफ में रखे हुए हैं। वहाँ टेम्पलर्स को तरबियत दी जाती है, नई भर्ती करते हैं और इन्हें तरबियत देने के बाद न सिर्फ उंदलुस में मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करते हैं बल्कि इन्हें जहाजों में बिठाकर अर्ज़ मुक़द्दस फलस्तीन की तरफ रवाना करते हैं ताकि वो हमारे सुल्तान सलाहुद्दीन के खिलाफ जिहाद में हिस्सा लें। सुल्तान मोहतरम दूसरी बड़ी कुव्वत जो मुसलमानों का कत्लेआम करते हुए खुशी महसूस करती है वो पुर्तगाल के हुक्मरान सैनको की भतीजी है। अमीर मोहतरम इस लड़की का नाम माजिन है। बचपन में ही इसके माँ बाप यानी सैनको का भाई और इसकी बीवी मर गए थे, तब इस लड़की को कलीसा के हवाले कर दिया गया। शुरू में इरादा ये था कि ये राहिबा बन जाएगी, लेकिन कलीसा वालों ने इसकी जंगी उमूर के लिहाज से तरबियत की। बचपन से लेकर जवानी तक इसे हर्बो ज़र्ब के सारे उलूम से बहरामंद किया गया। पुर्तगाल के बेहतरीन उस्ताद इसके लिए मुकर्रर किए गए और अब वो एक ऐसी तेगजन है जिसका पुर्तगाल में कोई जवाब नहीं। ये ख्याल किया जाता है कि सैनको ने माजिन नाम की इस लड़की के लिए अपने लश्कर का एक हिस्सा मुख्तस कर दिया है। इस लश्कर के साथ ये लड़की जिसका नाम माजिन है मुसलमान इलाकों पर हमलावर होती है और दूर दूर तक तबाही मचाती है और बर्बादी का खेल खेलते हुए लूटमार करती है। सुल्तान मोहतरम इस लड़की की राह रोकने के लिए आपके भाई उंदलुस के हुक्मरान अबू याहिया ने कई मरतबा मुख्तलिफ सालारों को भेजा, लेकिन हर मरतबा इस लड़की के मुकाबले में इन सालारों को शिकस्त हुई, बल्कि अक्सर सालारों को इसने मौत के घाट उतार कर रख दिया। चूंकि इस लड़की की तरबियत कलीसा वालों ने की है और तेगजनी और दूसरे हरबी फनून में इस लड़की का कोई मुद्दे मुकाबिल भी नहीं, लिहाजा कलीसा वालों ने इस लड़की को बरके कलीसा का नाम दिया है। अब पुर्तगाल ही नहीं, शुमाली उंदलुस बल्कि मुसलमानों के इलाकों में भी दूर दूर तक ये लड़की जिसका नाम माजिन है बरके कलीसा के नाम से मशहूर है और इसका नाम सुनते ही बड़े बड़े सालारों, बड़े बड़े सूरमाओं और तेगजनों के हौसले पस्त होकर रह जाते हैं। अमीर मोहतरम यही वो पैगाम है जो आप तक पहुँचाने के लिए मुझे करतबा से आपके भाई अबू याहिया ने रवाना किया है। अमीर मोहतरम, अगर बर वक्त शुमाली उंदलुस के बादशाह अल्फांसो और पुर्तगाल के बादशाह सैनको की राना रोकी गई तो याद रखें वो दोनों मिलकर उंदलुस से मुसलमानों का जीना दोभर कर देंगे और मुसलमानों के काफिले उंदलुस से उठकर मराकश का रुख करने लगेंगे। इस कासिद की खबर पर अमीर याकूब का चेहरा अंगारों की तरह सुलग उठा और इसकी आंखों के अंदर इंतकाम की चिंगारियां और आरजुओं के अलाव भड़क उठे। अमीर की हालत से ऐसा लगता था कि गोया इसके जिस्म तप कर तांबा हो गया हो, दिल समंदर की तरह खोल उठा हो। थोड़ी देर तक इसकी ऐसी हालत रही, फिर कसर के कमरे में अमीर याकूब अल मंसूर की खोलती हुई आवाज गूंज गई, अजीजों, अल्फांसो और सैनको ने अंगारों की जो फसल बोई है वो दोनों को आग की सूरत में काटनी पड़ेगी। अगर वो ये समझते कि हम अपनी उजड़ी बस्तियों के निशानों पर किसी रद्दमल का इजहार नहीं करेंगे तो वो दुनिया के अहमक तरीन इंसान हैं। लम्हों का तेज धारा वक्त के उड़ते तयूर देखेंगे। अनकरीब उंदलुस के अंदर अल्फांसो और सैनको के लिए हम दुख के ऐसे अंधे कुएं और उजाड़ मौसमों के ऐसे अजाब खड़े करेंगे जिनसे जान छुड़ाना इनके बस की बात न रहेगी। फिर हाथ के इशारे से उंदलुस से आने वाले सफीर को बैठने के लिए कहा। इसके बाद अपने हाजी को मुखातिब करते हुए उसने खोलते हुए लहजे में कहा, अब पुर्तगाल के नसरानी बादशाह सैनको के सफीर को पेश करो। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, बरके कलीसा की ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज।